यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की श्री मायापुर धाम की द्वारका मथुरा धाम की गंगा माई यमुना माई की देवी तुलसी महारानी की सामवेद गौर भक्तवृंद की गौर गेर प्रेम नक्षत्र नाम संकीर्तन Thy Guru Pramanande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Jai. Om Gyanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Shvarupa Kadamayam Dalati Shapadantikam वंदेयं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमलायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये राचल हरिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हुकम को विलासनम परमं मंगलायते जगन्नाथकारणं वन्दे श्री गुरुदेवाय Hare Krishna. So today is the first day of Purushottam Mas. Hare Hare Bol. Hare Hare Bol. Purushottam Mas ki jai. So Purushottam Mas is the special month which is presided over by Lord Krishna himself. So just like the month of Kartik is very auspicious for Gaudiya Vaishnavas because that month is personally presided over by Srimati Radharani. Similarly, this month is presided over by Lord Krishna himself, who is Purushottam. So why some days are specifically pointed out on which Lord's mercy is especially given. Actually, we are supposed to be serious about spiritual life all the time, but generally our tendency is that we become slack sometimes. That is why
some special days. Krishna, it is mentioned in the Puranas that some special days we have to be, at least for that reason we should be extra serious about spiritual life. So that is why this month of Kartik, month of Purushottam, and similarly Ekadashis are there, so that we can keep on reminding ourselves how much we have to give importance to devotional service in our hearts. So Purushottam Mass is so glorious that in Vrindavan, in the temples in Vrindavan, it is a rule that if anyone wants to celebrate any festival that happens in any other part of the year, that festival can be celebrated in the month of Purushottam Mass any day. For example, let us say some temple in Vrindavan decides that today we are going to celebrate Janmashtami. So again, they will celebrate Janmashtami just like they celebrate on the usual Janmashtami day. Some temple decides today we are going to celebrate Radha Ashtami. So that will have the same potency as that original Radha Ashtami. Similarly, Gaur Purnima, Ram Navami, all the festivals. All the festivals can be observed in the month of Purushottam Mass. So today we are starting a series of lectures on the Hanuman Chalisa. Very good. So Hanumanji is someone who is very dear to everyone. Like usually as children, as we are growing up as children, the first prayer which the mother or grandfather, anyone teaches a child is Hanuman Chalisa. And that is the first prayer. I remember when I was preaching in my first years. अच्छा, तो जब आईआईटी में हम लोग प्रचार करने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट ईयर्स को जब हम लोग अप्रोच करते हैं, अधिकतर फर्स्ट ईयर से बोलते हैं भैया हम लोग बहुत रिलीजियस हैं, रात को रोज हनुमान चालीसा पढ़ के सोते हैं. तो हनुमान चालीसा इज समथिंग दैट इज वेरी मच डियर टू एवरीवन एंड दीज डेज आजकल लोगों को ये सब हाँ बोला आईटी जाता है तो हनुमान चालीसा सीख और ड्रामा में भी बोला हनुमान चालीसा मम्मी देती है लाइक दिस. तो आजकल छोटे बच्चों का क्या टेंडेंसी होता है सुपर हीरो मूवीज देखने का, है ना, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, ये सब के बारे में. लेकिन उन सुपर हीरो मूवीज से बहुत ज़्यादा हम लोग लेसन नहीं ले सकते. मतलब इंटरटेनमेंट हो सकता है लेकिन कुछ लेसन नहीं सीख सकते. लेकिन इन सब सुपर हीरोज में सबसे पावरफुल सुपर हीरो है हनुमान, बैटमैन, स्पाइडरमैन. और उनके लाइफ से हम लोग बहुत सारे टीचिंग्स ले सकते हैं. सो दैट इज वाई टुडे ऑन द ऑस्पिशियस मंथ ऑफ कार्तिक वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज ऑफ टॉक्स बेस्ड ऑन हनुमान चालीसा. जय हनुमान जी की जय हो. First verse of Hanuman Chalisa, we will discuss this verse by verse, and in every verse some words we will select some stories from the Puranas that we are going to elaborate for each and every verse. तो पहला वर्स है नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो आज हम लोग डिस्कशन अपना शुरू कर रहे हैं हनुमान चालीसा के बारे में. तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी एक्चुअली बहुत सारे लोग राम के कैरेक्टर में फॉल्ट निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ निकाल सकते हैं. कि हनुमान कि राम जी क्या किए थे, अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दिए थे, या फिर कोई एक शुद्र शास्त्र पढ़ रहा था तो उसका गला काट दिए थे. तो इस तरह से अगर किसी का बुद्धि ठीक से काम नहीं करता है तो ये राम के चरित्र में दोष निकाल सकते हैं. लेकिन हनुमान जी का कैरेक्टर ऐसा है कि हनुमान जी के कैरेक्टर में कोई दोष नहीं निकाल सकता है. और इनफैक्ट जो एथिस्ट लोग भी हैं, मतलब जो भगवान में नहीं भी मानते, उनको भी हनुमान जी के कैरेक्टर या फिर उनके बारे में सुनने से उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है. राम में, कृष्ण में, सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट निकाल लेंगे लेकिन हनुमान जी में कुछ फॉल्ट नहीं निकाल सकते, कम्प्लीटली स्पॉटलेस. तो हनुमान चालीसा का पहला वर्ष ऐसे शुरू होता है. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिंग लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. तो जय हनुमान मतलब हनुमान जी जिधर भी रहते हैं उधर क्या होता है, हमेशा जय होता है. और हम लोग ये देख सकते हैं कि रामायण के युद्ध में, जब लंका में युद्ध हुआ था, रामायण का जो निर्णायक युद्ध था, तो उसमें हनुमान जी राम के साइड थे और विजय किनका हुआ, राम जी का. सिमिलरली जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय हनुमान जी किधर थे,
अर्जुन के ध्वज पे ऊपर था, कपि ध्वज है ना। तो उस समय विजय किनका हुआ? अर्जुन का। सो जय हनुमान। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर मीन्स हनुमान जी इज द ओशन ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज एंड ओशन ऑफ ऑल नॉलेज, इस तरह से कहा जाता है। फिर जय कपीश, तो ये कपीश वर्ड यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है। मतलब हम लोग को समझना है, जैसे कपीश मतलब क्या होता है? वन हु इज द किंग ऑफ ऑल मंकीज। लेकिन हम लोग देखें कि कभी हनुमान जी कभी राजा नहीं बने मंकी लोगों के, कपी लोगों के राजा नहीं बने। हनुमान जी के पहले मतलब वहाँ पे पहले राजा कौन थे? बाली थे। फिर बाली के मृत्यु के बाद सुग्रीव बने, सुग्रीव के बाद अंगद बना। हनुमान जी कभी राजा नहीं बने। फिर उनको कपीश क्यों कहा जाता है? तो हनुमान जी को कपीश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी सबके हार्ट पे राज करते थे, इस तरह से। तो हनुमान जी भले ही थ्रोन पे ऑफिशियली ये किंग नहीं थे, लेकिन ही वॉज द किंग ऑफ एवरीवन्स हार्ट। दैट इज वाई हनुमान जी इज एड्रेस्ड एज कपीश। हाँ, इसीलिए उनको कपीश बोल के हम लोग एड्रेस करते हैं। फिर तीहू लोक उजागर, तीहू लोक उजागर मतलब हनुमान जी का नाम तीनों लोक में गाया जाता है। तो हम लोग को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ भारत में या फिर सिर्फ हमारे पृथ्वी पे हनुमान जी के बारे में लोग चर्चा करते हैं। नहीं, स्वर्ग लोक में जितने भी प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, जितने भी ग्रह लोक हैं, हर जगह हनुमान जी का गुणगान लोग गाते हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे विदेशों में भी ऐसा पाया गया है। मतलब पुरानी पुरानी मंदिरें मिली हैं जिनमें हनुमान जी की मूर्ति है। मॉरिशियस में, इनफैक्ट सऊदी अरेबिया में, रशिया में, हर जगह हनुमान जी की मूर्ति है। मतलब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हनुमान जी का पूजा पूरे विश्व भर में किया जाता था एक समय पे। तो रामदूत अतुलित बलजामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब ये अंजनी पुत्र और पवन सुत होने के साथ साथ इनका हनुमान जी तीनों लोक उजागर, तीनों लोक में फेमस कैसे हुआ? तो उसके पीछे स्टोरी है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। तो हनुमान जी की माता है अंजना, तो हम लोग जानते हैं अंजनी पुत्र बोलते हैं हनुमान जी को। तो अंजना एक बार एक गुफा में तपस्या कर रही थी, बहुत घोर तपस्या में लीन थी। तभी उस गुफा में क्या हुआ, एक दानव आया। उस दानव का नाम था संबसादन। तो वो दानव आया और गुफा का द्वार बंद करने लगा। तो अंजनी माता को समझ में आ गया कि ये दानव क्या करना चाहता है। मतलब बहुत वासना भरी नज़रों से वो माता अंजनी की तरफ देख रहा था। तो अंजनी माता वहाँ से भागी और किसी तरह गुफा का द्वार खोल के वहाँ से भागने लगी। मतलब मदद के लिए, सहायता के लिए चिल्लाने लगी जोर जोर से, बचाओ बचाओ, और फिर भागने लगी। और उनके पीछे पीछे ये जो दानव था संबसादन, ये भी भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो पहुंची एक ऋषि के आश्रम में। वहाँ पे एक गांव जैसा था, वहाँ पे बहुत सारे ऋषि साथ में बैठ के जंगल में तपस्या करते थे। तो वैसे एक जगह पे पहुंची और एक ऋषि का वहाँ पे द्वार खुला था, तो उनके घर में प्रवेश कर गई। और फिर अंदर ऋषि थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो अंजना ने बताया कि हम गुफा में तपस्या कर रहे थे और एक दानव है संबसादन नाम का, वो मेरे पीछे आ रहा है और वो मेरे को अटैक करना चाहता है। तो ऋषि ने बोला ये जो दानव है संबसादन, इसको असल में वरदान मिला है कि पूरे ब्रह्मांड में बस एक ही व्यक्ति है जो उसका वध कर सकता है, और वो है वानरों के राजा केशरी। तो केशरी के पास तुम जाओ, केशरी तुम्हारा सहायता कर सकते हैं। तो जैसे ही ये ऋषि ऐसे बता रहे थे, वैसे ही ऋषि का जो आश्रम था पूरा टूट गया। और फिर उन्होंने देखा कि वो जो दानव था उसने पूरा आश्रम तोड़ के फिर अंदर घुस गया वो अंदर। और अंजना पे अटैक करने ही वाला था कि पीछे बैकग्राउंड से एक आवाज़ आया, और उस आवाज़ ने क्या किया, ये जो दानव था संबसादन, इसको चैलेंज किया फाइट के लिए। तो सबने पीछे मुड़ के देखा कि ये कौन है, किसने मतलब इनको ललकारा है संबसादन को इस मोमेंट पे, जस्ट जब अटैक करने ही वाला है वो। तो सबने देखा वहाँ पे कौन था, केसरी। तो जस्ट लाइक भगवान के अरेंजमेंट से, बाय विल ऑफ प्रोविडेंस, ऐसा लग रहा था कि ऐसा अरेंजमेंट हुआ है कि मतलब जस्ट उसी समय पे, जिस समय अटैक होने वाला है उसी समय पीछे से केसरी आ गए और फिर दोनों के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ। और दोनों युद्ध में एकदम अपने आप को एकदम टक्कर का युद्ध दे रहे थे, मतलब ये संबसादन और केसरी। और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कौन जीतेगा, तो सारे ऋषि लोग उनका युद्ध देख रहे थे। फिर अंजना को समझ में नहीं आया कि अभी क्या करना चाहिए। तो कभी वो संबसादन जो था वो बड़े हाथी का रूप ले लेता था, तो केसरी एक छोटे जानवर का रूप लेके उसको इधर उधर चकमा देते थे। तो अंजना को समझ नहीं आ रहा था कि असल में इसका वध कैसे होगा। तो अंजना ने अपने आप को क्या किया, ये पूरे फाइट से थोड़ा विड्रॉ करके कोने में जाके भगवान शिव का स्तुति करने लगी।
भगवान शिव को प्रार्थना करने लगी कि इस दैत्य को कैसे मारा जाए, आप मेरे को बताइए। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन हम लोग को समझ में आना चाहिए कि हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन जब प्रयत्न करने के बाद भी कुछ परिणाम नहीं दिख रहा है तो अंत में हम लोग को भगवान का शरण लेना चाहिए। तो उनको अंजना को दिख रहा था कि असल में लड़ाई करने से उनको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें। अपने तरफ से तो ये पूरा कोशिश कर रहे थे केसरी, लेकिन फिर भी वो दैत्य जो था वो मर नहीं रहा था। तो अंजना ने शिव जी का स्तुति करना शुरू किया। तो शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने उनको बोला, बस एक वर्ड में उनको बताया क्या करना है। वो एक वर्ड था ब्लड, रक्त। तो अंजना एक वर्ड में ही समझ गई उनको क्या करना है। तो अंजना फिर भाग के गई और केसरी का जो बाण और उनका जो धनुष था उसको ले आई और उसको क्या किया, वो जो दानव था संबसदन उसके रक्त में गिरा दिया। मतलब दोनों जब लड़ रहे थे तो बहुत खून इधर उधर गिर रहा था, तो संबसदन का जो रक्त था उससे एक बड़ा सा पुल बन गया था वहाँ पे। उसमें उन्होंने डुबा दिया धनुष और बाण को और फिर केसरी को दे दिया, केसरी की तरफ फेंक दिया। तो केसरी समझ गया उनको क्या करना है। केसरी ने तीर बाण निकाला, धनुष चढ़ाया और मारा, और एक शॉट में ही वो जो संबसदन था धरती पर गिर गया। तो सब ऋषि लोग जय जयकार करने लगे केसरी का कि इतना बड़ा दैत्य था, सबको परेशान कर रहा था, इसका वध हो गया। फिर ऋषियों ने क्या किया, अंजना को बोला कि ये केसरी ने तुम्हारी रक्षा की है तो तुमको केसरी से विवाह करना चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि तुम लोगों के विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो तीनों लोक में बहुत फेमस होगा। तो इसलिए हनुमान जी को ऐसा वरदान मिला कि वो तीनों लोक उजागर। तो ये पहला स्टोरी था। ओके, सो अगेन इस वर्ष में और बहुत कुछ सिग्निफिकेंट है। रामदूत अतुलित बलधामा। तो रामदूत, हनुमान जी का रोल जो है वो रामदूत की तरह का है। रामदूत मतलब ही इज मैसेंजर ऑफ लॉर्ड राम। तो इस वर्ड के पीछे भी एक स्टोरी है कि जब हनुमान जी पहली बार मिले लॉर्ड राम से, तो राम जी और लक्ष्मण जी उस समय सीता को ढूंढ रहे थे। और फिर सुग्रीव ने देखा कि ये दो क्षत्रिय लोग हैं जो धनुष्मान लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान को भेजा कि तुम जाओ पता करो ये दोनों कौन है। तो उस समय राम जी ने उनको बताया। एक्चुअली हनुमान जी को एक बून मिला था, बेनेडिक्शन मिला था, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो हनुमान जी गए राम और लक्ष्मण से मिलने। तो राम ने पूछा कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने अपने आप को बताया कि मैं सुग्रीव का दास हूँ। तो इस बात से राम जी बहुत अप्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 महीने तक हनुमान जी से बात नहीं किया इस कारण से, क्योंकि हनुमान जी ने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया, एज दास ऑफ सुग्रीव, एज सर्वेंट ऑफ सुग्रीव, एज मैसेंजर ऑफ सुग्रीव, सुग्रीव दूत। तो यहाँ पे हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग का इस वर्ल्ड में बहुत सारा आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एज सन ऑफ समवन, आइडेंटिटी एज ब्रदर ऑफ समवन, और सोशल हमारा कुछ पोजीशन है सोसाइटी में, एज अ टीचर, एज प्रोफेसर और व्हाटएवर। तो ये सारा जो आइडेंटिटी है, दीज आर टेम्पररी आइडेंटिटीज। आवर इटर्नल आइडेंटिटी इज एज सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और इस आइडेंटिटी को भूल के हनुमान जी ने क्या बोला कि आई एम सर्वेंट ऑफ सुग्रीव। ही इज नॉट टेलिंग आई एम सर्वेंट ऑफ राम, ही इज टेलिंग आई एम सर्वेंट ऑफ सुग्रीव। तो इसलिए राम जी क्या हो गए, डिस्प्लीज हो गए और अप्रसन्न हो गए, और उन्होंने 4 महीने तक बात नहीं किया हनुमान जी से। तो उस 4 महीने में क्या हुआ, हनुमान जी ने बहुत अच्छे से सेवा किया लॉर्ड राम का, बहुत मीनियली सेवा किया। उसके बाद फिर उनको पता चला कि ये जो है राम जी को रियलाइज हुआ कि हनुमान जी जनरली इन्होंने गलती की और इनको उसका अभी पश्चाताप है। तो फिर उसके बाद 4 महीने के बाद जब उनको सब वानरों को भेजा जा रहा था अलग अलग दिशा में, तो राम जी उसके बाद हनुमान जी से बात करना शुरू की और उन्होंने अपना अंगूठी दिया हनुमान जी को, और उनको लगा कि देखो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा भक्ति है, तो मेरे को लगता है कि सीता तुम्हें ही मिलेगी, तो इसलिए ये रिंग उनको देना और फिर उनको मेरे बारे में बताना। तो हनुमान जी बहुत खुश हो गए। और फिर उन्होंने, दिस इज हनुमान जी ट्रांजिशन। हनुमान जी का रोल अभी कहाँ से कहाँ हुआ, अभी तक वो सुग्रीव के दूत थे, अभी से वो राम के दूत के रूप में जाने लगे, है ना। तो रामदूत अतुलित बलधाम। तो राम के दूत के रूप में जब वहाँ गए लंका में, फिर लंका में जब उन्होंने माता सीता से मिला और माता सीता ने जब राम के बारे में बताया, इन्होंने राम के बारे में बताया, तो इनके हृदय में बहुत एक तरह से सेवा भाव भगवान राम के प्रति जो था वो और बढ़ गया।
और उसके बाद जब रावण ने इनसे पूछा, रावण जब इनको बंदी बना के लाए अशोक वाटिका से, तो रावण ने उससे पूछा तुम कौन हो वानर? तो हनुमान जी ने फिर उत्तर दिया दासो हम कौशल इंद्रस्य। तो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को सुग्रीव दूत के रूप में नहीं बताया, राम दूत के रूप में नहीं बताया, उन्होंने कैसे बताया? दासो हम कौशल इंद्रस्य, आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम। तो इस तरह से हनुमान जी का जो रोल है वो पहले था सुग्रीव दूत का, फिर राम दूत का, फिर रामदास का। सो दिस इज स्टोरी अबाउट हाउ दिस रामदूत वर्ड केम। Okay. Then next verse is महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराट सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा। तो महावीर विक्रम बजरंगी, सो हनुमान जी का नाम बजरंगी बहुत फेमस है। आजकल बच्चों को बजरंगी पता नहीं है, बजरंगी भाईजान पता है मूवी के नाम पे। तो हनुमान जी का नाम बजरंगी क्यों पड़ा? हनुमान जी का नाम बजरंगी क्यों पड़ा, इसके पीछे भी स्टोरी है कि हनुमान जी जब छोटे बच्चे थे तो उनकी माँ ने उनको बोला था कि जो भी लाल कलर का फल दिखे तुम उसको खा लेना। तो इनको पेड़ पे वो लाल कलर का फल दिखा तो उसके तरफ कूद गए। फिर वहाँ पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि वो फल आकाश में बहुत दूर है, तो वो असल में सूर्य को देखे थे। तो फिर वो सूर्य देव की तरफ बहुत तेजी से भागने लगे, और जब वो भागने लगे उनको मन था कि ये बड़ा सा जो लाल गोला है, ये जो लाल फल है, ये मेरे को खाना है। तो बहुत तेजी से भागने लगे, तो सारे ग्रह जो थे वो देखने लगे ये कौन है, ये वानर जो इतनी तेजी से भाग रहा है सूर्य की तरफ। तो सारे ग्रह रुक गए ताकि हनुमान जी को रास्ता मिले, मतलब वो जल्दी से पहुंच जाए उनके तरफ, सूर्य देव की तरफ। फिर सारे ग्रह साइड हो गए और हनुमान जी गए सूर्य के पास। और सूर्य उस समय पूरा, उन्होंने देखा इतना विशाल फल है, तो हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और फिर सूर्य को अपने मुंह में ले लिया। और उसी समय क्या था, एक्चुअली सूर्य ग्रहण का टाइम हो रहा था। तो राहु नाम का जो ब्लैक प्लैनेट है वो एक्चुअली सन को कवर करता है, तो उससे सूर्य ग्रहण होता है। तो वहाँ पे राहु आया और देखा कि यहाँ पे सन तो है ही नहीं, यहाँ पे तो बस एक वानर है और उसका मुंह पूरा लाल है बड़े से। तो उन्होंने पूछा कि, तो हनुमान जी ने जब राहु को देखा, तो राहु इज ऑल्सो वेरी बिग प्लैनेट एंड ब्लैक प्लैनेट, तो उसको हनुमान जी को लगा कि ये एक और ब्लैक कलर का फल है, तो उसके तरफ भी खाने के लिए बढ़े। तो फिर राहु वहां से भागा और जाके इंद्र को बताया। अब पूरे यूनिवर्स में, मतलब सन इज द सोर्स ऑफ लाइट फॉर ऑल प्लैनेटरी सिस्टम, सारे प्लैनेटरी सिस्टम के लिए सन से ही लाइट आता है, और सन एकाएक से गायब हो गया। तो सब सोचने लगे सन गया कहाँ, मतलब यूनिवर्स में से जैसे ट्यूबलाइट कभी ऑफ हो जाता है तो इसको हम ऑफ ऑन कर सकते हैं, लेकिन सूर्य तो हमेशा जलते रहता है। तो सबको लगा कि ये ऑफ कैसे हो गया। तो इंद्र फिर वहां पे पहुंचे देखने के लिए कि क्या चल रहा है। राहु ने बताया एक बड़ा सा विशाल कोई मंकी आया है और उसने सूर्य को खा लिया। तो इंद्र को लगा सूर्य को कोई कैसे खा सकता है। फिर इंद्र वहां पे पहुंचे अपने ऐरावत को लेकर। तो हनुमान जी ने जब ऐरावत को देखा तो उनको लगा एक और व्हाइट कलर का फल है तो ऐरावत को खाने का कोशिश करने लगे हनुमान जी। तो जैसे ही हनुमान जी ऐरावत को अपने हाथ में लिए और खाने वाले थे, इंद्र उस समय ऐरावत के ऊपर ही था, तो बहुत डर गए कि कैसा विशाल ये मंकी। तो उन्होंने क्या किया, डर से अपना वज्र निकाला, वज्र चला दिया, और फिर वज्र हनुमान जी को लगा और उनके कारण उनकी ठुड्डी पे ये वज्र लगा। तो इसके कारण क्या हुआ, उनकी ठुड्डी मतलब थोड़ी सी टूट गई, इसलिए उनका नाम है हनुमान। हनु मीन्स ये जो ठुड्डी होती है, चिन्ह है ना, और मान मतलब जिनके चिन्ह पे थोड़ा सा क्रैक है, तो इसलिए हनुमान जी। उससे पहले उनका नाम था सुंदर या फिर मारुति। तो हनुमान जी इस तरह से गिरने लगे। फिर पवन देव को पता चला कि वज्र से अटैक किया गया है मेरे पुत्र पे, तो वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या किया, पूरे यूनिवर्स का हवा छीन लिया, सिर्फ प्लेनेट अर्थ का नहीं, पूरे यूनिवर्स का। तो सारे जितने भी देवी देवता थे सब उनको सांस भी नहीं ले पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। पूरा लाइफ एक तरह से पूरे यूनिवर्स में स्टॉप हो गया। मतलब एक एक डेमी गॉड के पास इतना पावर है कि मतलब वो पूरे यूनिवर्स को पॉज कर सकते हैं एक सेकंड के। तो इस तरह से फिर सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि ऐसे ऐसे हुआ, पूरा स्टोरी बताएं। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, अब प्रॉब्लम हो गया तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो वो गए पवन देव के पास और उन्होंने कुछ अपने कमंडल से कुछ पानी निकाला, हनुमान के ऊपर डाला, तो हनुमान जी फिर से जीवित हो गए। और फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि आप सब देवी देवता इनको वरदान दीजिए, क्योंकि भविष्य में ये राम जी जब अवतार लेंगे तो उनका बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो उसमें अलग अलग देवताओं ने अलग अलग क्या किया, बेनेडिक्शन दिया हनुमान जी को। तो जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने बोला कि आपको किसी भी यूनिवर्स में कोई भी वेपन आपको अटैक नहीं कर सकता है। देन विश्वकर्मा जो थे, जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं,
उन्होंने ऐसा उनको क्रिएटिव इंटेलिजेंस दिया कि आप भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंटेलिजेंस आएगा, मतलब किसी भी चीज़ की रचना के लिए जो बुद्धि लगती है वो आपके अंदर अच्छे से भर के होगा। फिर कुबेर जी ने उनको गदा दिया, और सूर्यदेव ने उनको और भी वरदान दिया कि आपको हनुमान जी के बॉडी के अंदर 1/100 ऑफ माई इफल्जेंस, मतलब सूर्य का जो तेज है उसका 1/100 पोर्शन हनुमान जी के बॉडी में आएगा। इतना इफल्जेंट बॉडी रहेगा हनुमान जी का। और फिर सूर्यदेव ने बोला कि फ्यूचर में जब उनका शिक्षा ग्रहण का टाइम आएगा तो आई विल बिकम योर गुरु, आई विल गिव यू द टीचिंग, एंड आप इस संसार के सबसे श्रेष्ठ शिष्य में से माने जाएंगे। तो जब सूर्यदेव शिक्षा दे रहे थे हनुमान जी को, तो उस समय सूर्यदेव तो रथ पे चलते रहते हैं, तो वो रुक नहीं सकते किसी एक जगह पे। तो उन्होंने बोला हनुमान जी को कि आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले ठीक है, मेरे को तो बस शिक्षा लेना है, तो हम बस आपके तरफ चलते रहेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्यदेव उनका अटेंशन सूर्यदेव से हटे नहीं, इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी सूर्य इस तरफ चल रहे हैं और हनुमान जी उल्टा सूर्य की तरफ देखते देखते उल्टा उड़ रहे थे, ताकि उनका अटेंशन टीचर की तरफ से हटे नहीं। और उसके बाद क्या, एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं किया शिक्षा देते टाइम कि कुछ किसी चीज के लिए बोला कि कैन यू प्लीज रिपीट, आई कुडंट हियर दिस, इस तरह से इतने अटेंशन के साथ एक बार में चलते चलते उल्टा चलते हुए वो। तो हनुमान जी इतने डेडिकेटेड स्टूडेंट थे। तो अलग अलग देवता इस तरह से वरदान दे रहे थे। तो इंद्र ने उनको वरदान दिया कि बिकॉज मेरे वज्र से आप पे प्रहार हुआ है, तो आपके शरीर का एक एक अंग क्या होगा, वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया वज्रंग या फिर बजरंग। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संग, कंचन वरण विराज ऐसा कानन कुंडल कुंचित के साथ। तो हनुमान जी के कान में कानन कुंडल होता है। तो कुंडल उनके पास कैसे आया, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो जब सारे ऋषियों ने अंजना और केशरी को ऐसा वरदान दिया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बहुत पावरफुल होगा और सभी मंकियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, तो जो वानर होगा, तो वाली को थोड़ा टेंशन होने लगा कि वाली खुद राजा बनना चाहता था, और उनको जब पता चला कि ये जो हनुमान है ये सबसे पावरफुल मंकी होने वाला है, तो उनको लगा कि इसका हनुमान का मरना तय है, मतलब उसको मारना जरूरी है अगर हमको राजा बनना है। तो उन्होंने क्या किया, 5 मेटल को मिला के एक कुछ पोशन तैयार किया और उसको अपने एक दासी से भिजवाया अंजना के पास, जब अंजना प्रेग्नेंट थी और उनके वोम में हनुमान जी थे कि, और वो मतलब पोषण पीते ही अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो शी विल हैव मिसकैरेज, मतलब उनका जो गर्भपात हो जाएगा। तो उन्होंने वो 5 मेटल का बनाया वो अमलगम जो भी है, और दिया अपने दासी से भिजवाया अंजना की तरफ। तो अंजना ने उसको पिया, और फिर भी वाली कुछ दिन ऑब्जर्व किया कि अभी भी उनका वोम जो था, मतलब चाइल्ड वाज हेल्दी ओनली। तो उन्होंने फिर से एक बार वो पोषण बनाया 5 मेटल का और उसको फिर से पिलवाया अंजना को। अंजना ने फिर पी लिया, फिर भी वो हनुमान जी इतने स्ट्रांग थे अपने वोम से, मतलब उन पे किसी जहर का कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर वाली को लगा कि ये बहुत दिव्य बच्चा है, मतलब इसका जब जन्म होगा तो हम इसको देखने जाएंगे कि असल में कौन है। तो वो जब जन्म हुआ हनुमान जी का, तो वो देखने गए, तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी जन्म से ही उनके कान में कुंडल था, और वो कुंडल उसी 5 मेटल का था जिसका इसने पोषण भेजा था। तो इसीलिए कानन कुंडल कुंचित के साथ हनुमान जी की जय। अच्छा ठीक है, सो यहाँ से हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और ये जो सारा हम स्टोरी बता रहे हैं ये सब शुभ विलास प्रभु के बुक का है।